Yesterday I have told you about the lines, that what are the equations of the lines which are parallel to x-axis and which are parallel to y-axis. And moreover, we have also learned what is the equation of x-axis and what is the equation of y-axis. So let us continue, let us do questions based on these two concepts that we have done earlier. So as the other students are arriving, so before starting the lecture, let us recall the things that we have done yesterday, and let me unmute one of you so that I can apprise myself that the things are very much clear to you people. Dhruv Mehta. Dhruv Mehta, unmute yourself, bache. Amritpal. Amritpal. Yes, ma'am. अमृतपाल, लेट मी नो द इक्वेशन ऑफ लाइन. मैं साथ साथ लिखती हूँ बोर्ड पे जो आपसे पूछ रही हूँ ताकि आपको पता चले. इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 units and below it. हाँ जी, what will be your answer? y equals to -4. Y is equal to -4. Very good. So x-axis के parallel, it will be in terms of y. Distance is 4 units, will be equal to 4. But as it is below x-axis, that means in the negative direction of x-axis, so minus sign is to be introduced, right? And yes, okay. So let me write something and ask one of you. X is equal to -3. चलिए, let us unmute Daksh 9th D. Daksh, unmute yourself. Daksh, hurry up. Yeah. हाँ जी, Daksh. What you will say about this equation? What is this? What it will be present in 2D, two-dimensional? Daksh. मम्मी अभी क्लियर नहीं है. Yes. क्लियर नहीं है. क्लियर नहीं हुआ तो एक बार देख लो दोबारा से. x is equal to -3. x वाली लाइन किसकी पैरेलल होगी? y एक्सिस के हमेशा. इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस. कितने डिस्टेंस पे? 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे. माइनस साइन है तो इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस. दैट मींस लाइन विल बी लाइक दिस. x is equal to -3. ओके. ये जो अब आप जो कह रहे हो ना क्लियर नहीं हुआ, आपको कल अपना हैंड रेज करना चाहिए था, पहली बात. नंबर 2, आज हम जो एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन करेंगे, दे आर ट्रूली बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट. अगर आप उनको भी ध्यान से सुन लोगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा, राइट? चाहत 90, चाहत 9th D, चाहत 9th C, चाहत 9th C, हिमानी खन्ना 9th C, हिमानी खन्ना, गुरसिमरजोत 9th C, गुरसिमरजोत. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. बेटे, what is the equation of x-axis? Equation of x-axis. Gursimarjot. What is the equation of x-axis? Gursimarjot, if I am audible, please let me know the answer. Yes, ma'am. What is the equation of x-axis? Y is equal to 0. बिल्कुल ठीक. Y is equal to 0. This is the equation of x-axis. And contrary, what is the equation of y-axis? Gursimarjot. X is equal to 0. X is equal to 0. Equation of y-axis is x is equal to 0. तो x equal to 0 आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ y-axis. चलिए, ये था हमारा कल का लेक्चर का थोड़ा सा रिकॉल, बिकॉज आवर क्वेश्चंस दे आर बेस्ड on truly on these concept that we have discussed yesterday. So let us start with exercise 4.4, which deal with the same concept.
Question number first, exercise 4.4. First question. He says, give the geometrical interpretation of y is equal to 3. Give the geometrical interpretation of y is equal to 3 in one variable and then in two variables. That means this one question, it deals with the two concepts at a time. That means we have to show its geometrical interpretation in one variable as well as in two variables. दोनों questions हैं. As far as the solution of this question is concerned, we before doing the solution we know the answer very well. We know that in one variable y is equal to 3. Y को भूल जाओ, 3 एक number है, तो one variable में वो क्या represent करेगा? Definitely it will represent a point on the number line. I will dictate it on the board. But हमें पता है कि y जो 3 है, what it represent? It represent a point on the number line. And what about when it is in two variables? जैसे कि हमने कल किया, y वाली line it is parallel to x axis. 3 means at a distance of 3 units. Positive 3 means parallel to x axis and lies above it. हमें answers पहले ही पता है, हमारे definitions के through, हमारे concepts के through. बस उन्हीं को हमने लिखना है. What will be the way of writing? Let me tell you. हम क्या लिखेंगे? In one variable, it represents a number on, या फिर सीधा लिखो a point on number line as shown by A in the, A को कॉमास में डाल दो, in the figure. हमने क्या कहा कि one variable में this will represent a point on number line. Let us represent it on the number line. Firstly, we will draw the number line with arrows on both the sides. This is compulsory. Whenever we are drawing the number line, the arrows are to be put on both of the sides, right? Then we have to take the origin 0. 0 हमने ली. Then 3 is to be plotted. Very easy. We have done it in earlier classes also. This is 1, this is 2, and this is 3. And how you will mark it? 1 centimeter gap, and 3 here you will mark it as A. And already you have written that it represents a point on number line by the point A as shown in the figure. तो ये one variable में इसकी presentation क्या हो गई? One variable में इसने एक point present किया, that is shown in the number line. So let us see that what it will represent in two variables. Two variables में ये क्या represent करेगा? Let us see. चलिए. In two variables, तो हमें सबसे पहले इसको two variables में convert करना है. बाद में लिखेंगे, पहले इसको convert करते हैं. How to convert it into two variables? Y is present here. We need x. How to introduce x in this equation? So that x is introduced and no effect is done to the equation. That means we have to multiply x by 0. We have to write 0 into x plus y equal to 3. There is no difference in the equation. Y is equal to 3 can be written like this. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 से multiplication हमें 0 ही आंसर दे देगा. तो this is 0 into x plus y equal to 3 as it is हमने लिख दिया. Now we want to do the graph. अब मैं कुछ questions randomly पूछना चाहूंगी, फटाफट से मेरे को आंसर देने हैं जैसे रैपिड फायर की तरह. शिवांश अग्रवाल. Yes, ma'am. शिवांश. Shivansh, what to do? Then we have to draw a graph. First point, what we need? Ma'am, x and y coordinates. X and y coordinate. That means we need points. And for points, what we need? Ma'am, क्या? For to find out the points, what we need? Ma'am, both x axis and y axis, ma'am, दोनों coordinates. To find out the points, we have to make the table first. हमें table बनाना पड़ेगा. चलिए. तो कल मैंने आपको बताया था कि जब हमें टेबल बनाना है, we need the values of x as well as y. X and y. And yesterday I have told you about a trick with the help of which you firstly which values to be put. X की value put करनी चाहिए थी y की. Just dancing.
जसनैन सिंह, जसनैन सिंह, hurry up, unmute yourself, जसनैन सिंह. हार्दिक नागपाल, unmute yourself, हार्दिक नागपाल, हार्दिक. जया ढींगरा, जया, Jaya Dhingra, unmute yourself. Yes, ma'am. Jaya, yesterday I have told you that whenever we have to find the points, we have to replace one variable. We have to choose value for the one variable and other value for the other variable will be find out. Can you please tell me that which value is to be put first? के लिए हमें x put करना चाहिए कि y? X. x. क्यों x put करना चाहिए? क्योंकि x को हम खुद लेके आएंगे. मैंने आपको एक जर्नल से एग्जांपल दिया था कि जिसको हम खुद लेके आएंगे उसको हमने ज्यादा इज्जत देनी है. तो वैल्यूज हम प्रोवाइड करेंगे x को. तो लेट अस पुट x टू बी 0. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम पुटिंग x टू बी 0. कुछ डाली जाओ x को, वो 0 ही बन जाएगा, बिकॉज 0 into समथिंग इज ऑलवेज 0. सो 0 into 0 0 गायब हो गया. y कितना बचा? 3. If I am taking x to be 1, अगर मैं x को 1 लेती हूँ, 1 into 0 again 0, y is 3. If I am taking x to be 2, अगर मैं x को 2 लेती हूँ, 2 into 0 0, y is again 3. And if I am taking x to be 3, अगर मैं x को 3 लेती हूँ, 3 into 0 again 0, y is 3. So this is all clear regarding table. Table के बारे में हमने ये सीख लिया. Daksh, please listen to me very carefully, क्योंकि in the end of the question I will ask questions from you because you were saying that it is not clear to me. चलिए, तो ये हमारा टेबल तैयार हो गया. Now we will plot these points on the graph. तो मैं roughly यहाँ पे ग्राफ आपके सामने ड्रॉ करूंगी. You see, we need two axes. So I am plotting, I am drawing. This is x-axis and this is y-axis and this is origin. तो हमें axis मिल गई. अब हम इनके ऊपर points जो है वो plot करने जा रहे हैं. So I would like to have 1 2 3 here and 1 2 3 here. So first point to be plotted is x0 y3. This is x0 y3. That means 0 comma 3. And second point that I have to plot it is 1 3 x1 and y3. This will be the point 1 comma 3. And the next point that I have to plot it is 2 comma 3. This is 2 comma 3. And the next point we have to plot is 3 comma 3. 3 comma 3. I hope कि सबको points plot करने आते हैं. हमने बहुत बार सीखा, coordinate metric कर चुके हैं. तो इन points को join किया. ये लाइन आ गई हमारे पास y is equal to 3. चलिए, लाइन आ गई y equal to 3. दक्ष, unmute yourself. दक्ष 9. दक्ष अगर कुछ सीखते हैं ना तो घबराते नहीं है. आपको नहीं समझ आया, अब दोबारा अपने आप को अनम्यूट करो. I will ask question, you will give the answer. Definitely concept will be in your mind. दक्ष, चलो भी दक्ष जी गायब ही हो गए. हाँ जी, listen. What we have concluded. क्या यहाँ से हमें इंटरप्रिटेशन मिली कि ये जो y equal to 3 लाइन थी, this is a line which is parallel to x axis. हमारे जो कॉन्सेप्ट, जो डेफिनेशन हम करके आए हैं उनके साथ बिल्कुल मैच हो रहा है, ये मैच हो रही है बात, उनके साथ बिल्कुल लिंक्ड हो रही है ये बात. that y is equal to 3 is a line which is parallel to x axis, जो कि x axis के पैरेलल है, right? so what we will write, so हम लिखेंगे in two variables y is equal to 3 represents a line, straight line rather लिखो, a straight line parallel to x axis. इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ. parallel to x axis at a distance of 3 units from it. At a distance of 3 units from it and above it. And above it. अब मैंने यहाँ पे above क्यों लिखा? Because दिख भी रही है हमें, above ही दिख रही है x axis के.
मोरओवर हमें पहले ही पता था, बिकॉज द कांस्टेंट इज पॉजिटिव सो द डायरेक्शन ऑफ द लाइन विल बी अबव एक्स एक्सिस। हाँ जी दक्ष। मेरा शट डाउन हो गया था। हाँ जी, शट डाउन हो गया था। शट डाउन हो गया था। आपको अभी क्वेश्चन समझ में आया जो हमने किया अभी? आ गया है। y इक्वल टू 3 कैसी लाइन आई हमारे ग्राफ में? दक्ष, y इज इक्वल टू 3 कैसी लाइन आई? ग्राफ आपके सामने है, देख के ही बता दो। y अब आप बोल ही नहीं रहे। चलिए, तो ये हमारे पास हुआ कि वन वेरिएबल में एक पॉइंट एंड टू वेरिएबल्स में एक लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। देखो 3 यूनिट के डिस्टेंस पे आप जाओगे, आपको एक लाइन मिलेगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ऊपर है, अबव है, इसलिए आई है अबव, बिकॉज दिस कांस्टेंट 3 इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। इफ नेगेटिव साइन इज देयर देन इट विल बी बिलो एक्स एक्सिस। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम क्वेश्चन है, दोबारा एक करवा देती हूँ ताकि रिपीट हो जाए और आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। द गिवन एक्सप्रेशन इज 2x plus 9 equal to 0. He says give the geometrical interpretation of this equation. फिर से वही क्वेश्चन, in one variable and second in two variables. Give the geometrical interpretation of this equation in one variable and in two variables. One variable और two variable दोनों में हमने देना है। Question could be like this also. Find the solution of this equation and give its geometrical interpretation in one variable and two variable. अगर मैं इस लाइन की वन वेरिएबल में एंड टू वेरिएबल में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखना चाहती हूँ तो मुझे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले मुझे इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। Until or unless I'm not finding the value of x, there will be no question to find out the symmetrical interpretation. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट? और सॉल्व करना हमें आता है, हम 8 में सीख के आए हुए हैं। लेट अस सॉल्व इट। 2x plus 9 equal to 0 implies 2x is equal to minus 9 further implies x is equal to minus 9 by 2 and this implies x is equal to minus 4.5. हमारे पास x की वैल्यू जो है that comes out to be minus 4.5. x की वैल्यू minus 4.5 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू हमारे पास minus 4.5 आई है, अब हमें इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखनी है, यानी कि इसका तो हमें पता ही नहीं था कि इसकी कैसे देखते हैं। हमने इसको इसमें से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू minus 4.5 आई, तो इसका मतलब we will go with this minus 4.5 to find out the geometrical interpretation of this line in one variable as well as in two variables. So let us start. चलिए इससे पहले कि हम इसको ड्रॉ करेंगे, दक्षिता से बात करते हैं। दक्षिता। यस मैम। दक्षिता, अभी मैं गुड मॉर्निंग, अभी मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रही, आप मुझे सीधा बताओ कि वन वेरिएबल में minus 4.5 क्या रिप्रेजेंट करेगा? वन वेरिएबल में minus 4.5। हाँ जी मैम, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। इट विल रिप्रेजेंट ए नंबर ऑन नंबर लाइन। ये नंबर ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेगा वन वेरिएबल में एंड इन टू वेरिएबल्स। दक्षिता। मैम, ये x is equal to minus 4.5 y के पैरेलल होगा।
वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा। क्या आएगा वाई तो के पैरेलल? सर्कल आएगा या ट्रायंगल आएगा? नो मैम, अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। और कुछ आप इस स्ट्रेट लाइन के बारे में मुझे बताना चाहो? मैम वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। और कुछ? मैम एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट 4। डिस्टेंस कितना होगा? सोच के बताओ। डिस्टेंस 4 मैम, 4 यूनिट्स। क्यों? कांस्टेंट तो 4.5 है, तो डिस्टेंस 4 यूनिट्स कैसे हो गया? कांस्टेंट इज 4.5, तो डिस्टेंस 4 यूनिट कैसे हो गया? हाँ जी दक्षिता। मैम बेटे जितना कांस्टेंट उतना डिस्टेंस। कितना कांस्टेंट है यहाँ पे? -4.5। तो डिस्टेंस कितना होगा? -4.5 यूनिट्स। डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। माइनस तो हमें डायरेक्शन बता रहा है कि लाइन किधर को होगी। डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगा। कितना होगा डिस्टेंस दक्षिता? व्हाट विल बी द मैम डिस्टेंस? 4.5 यूनिट्स ही होगा। 4.5 यूनिट्स डिस्टेंस होगा। आप आ रहे हो लाइन पे धीरे धीरे। आपने कहा ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, मैंने आपकी बात मान ली। फिर डिस्टेंस हो गया 4.5। अब वाई एक्सिस के पैरेलल तो लाइन राइट पे भी हो सकती है, लेफ्ट पे भी हो सकती है। ये किस डायरेक्शन में होगी? मैम अगर ये नेगेटिव है तो ये लेफ्ट साइड पे होगा। बिल्कुल ठीक। नेगेटिव साइन का मतलब डायरेक्शन के साथ है। वी आर नॉट डीलिंग विद द डिस्टेंस नेगेटिव वे। We are dealing with the direction. Direction is there. If negative point sign is there, it means he is telling about the direction that to which side the line will lie. Whether it will lie on the right side or it lie on the left side. Right? इसका मतलब दक्षिता ने हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन करने से पहले ही ये बता दिया कि मैम 1 वेरिएबल में ये पॉइंट होगा और 2 वेरिएबल में लाइन होगी। x है तो y एक्सिस के पैरेलल होगी। कांस्टेंट 4.5 है, डिस्टेंस 4.5 होगा लाइन का y एक्सिस से। माइनस साइन है, इसका मतलब द लाइन विल बी इन द लेफ्ट डायरेक्शन। लेट अस स्टार्ट इन 1 वेरिएबल। सो वी विल राइट इट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट on the number line as shown by the point A in the figure. It represents a point on the number line as shown by the point A on the number line. एक मिनट, मुझे लगता है कि इस लाइट को ऑफ करने से चलिए। So in 1 variable it represent a point on the number line, right? चलिए हम इसको प्लॉट कर दें 1 वेरिएबल में। Center is with origin 4.5 is to be plotted. So 1 -1 नेगेटिव साइड पे, -2 -3 -4 एंड -5। सो हमें -4.5 चाहिए। इसका मतलब हमें ग्राफ पे 4 के बाद 5 लाइंस काउंट करनी होगी। 1 2 3 4 5 यहां तक आएगा। ये होगा हमारा A -4.5, राइट? तो 1 वेरिएबल में तो सबको आता है, हर किसी ने किया हुआ है 6th 7th में 8th में रादर। नाउ लेट अस स्टार्ट विद 2 वेरिएबल्स। दैट व्हाट इट विल रिप्रेजेंट इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? लेट अस थिंक अबाउट दैट। चलिए सबसे पहले मैंने लिखा x इज इक्वल टू -4.5। तो इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्जन इसकी कैसी होगी? क्या करें इसको 2 वेरिएबल में? कार्तिक विज convert it in 2 variables. What we should do?
x है, y को लेके आओ। मैम y को लेके आना पहले। यस मैम आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आई एम, यू आर ऑडिबल टू मी, स्पीक अप। मैम पहले x और y को एज्यूम करना है, उसके लिए पहले x into 0 प्लस x into 0 ऐसा ही कुछ था मैम। ऐसे ही कुछ था, ऐसे कुछ था नहीं, ऐसे एक मैम मुझे प्रॉपर क्लियर नहीं है एक्चुअली, एग्जैक्ट मैं चीज समझ ही रहा था अभी। प्रॉपर क्लियर नहीं है तो हैंड रेज करते हैं। इफ मैं, अगर मैं तो बाई चांस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, अगर मैं ना क्वेश्चन पूछती तो आपको प्रॉपर क्लियर कभी भी नहीं होना। नहीं मैम मैं समझ रहा था अभी, मतलब 60% समझ आ गया मुझे। दिशा, उतना तो बता दीजिए। यस मैम। दिशा, हाउ टू टेक इट इन टू वेरिएबल्स, कैसे कन्वर्ट करें इसको टू वेरिएबल्स में? y into 0 plus x is equal to minus 4.5. बिल्कुल ठीक, x प्लस, मैं सीरियल ऑर्डर में लिख रही हूँ, 0 into y इक्वल टू माइनस 4.5. नाउ वी नीड अ टेबल। हाँ जी दिशा, टेबल बनाने में हमारी हेल्प करेंगे आप बताओ मुझे, पहले मैं x की वैल्यू पुट करूं टेबल में कि y की? मैम y की, क्योंकि वो हमने अभी खुद लिया है। y को हम खुद लेके आए हैं तो हम उसको मैक्सिमम रिस्पेक्ट देंगे, तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे आपको पता है पॉइंट्स फाइंड करने के लिए मैं साइड पे कैलकुलेशंस क्यों नहीं शो करती, क्यों नहीं ऐसे करती? इसलिए क्योंकि मुझे पता है एक नंबर 0 पुट होगा, दूसरा नंबर वैसे का वैसे ही रह जाना है, क्योंकि 0 into something 0. So if I am putting y to be 0, x will remain minus 4.5. And if I am taking x to be 1, again y to be 1, again x is minus 4.5. 0 into 1 0 हो गया, खत्म हो गया y हम लेके आए हैं बट वो खत्म होता जा रहा है साथ साथ, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो if I am taking x to be 2, again it will be minus 4.5. If I am taking x to be 3, it will be again minus 4.5. ठीक है, तो ये y की वैल्यूज हमने ली 0 1 2 3 एंड वी आर गेटिंग दी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x। हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आती गई। ठीक है, अब पॉइंट्स आ गए, x this y this x this y this x this y this and x this y this. When we are having points with us, we can draw its graph in 2D. Let us plot the graph. Let us plot the graph. अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। नेगेटिव साइड पे ज्यादा ले लेते हैं क्योंकि नेगेटिव साइड पे x की वैल्यू, y axis y dash, x axis x dash, this is a point O, this is -1, this is -2, -3, -4 and this is -5। ठीक है, अब हमारा पहला पॉइंट क्या है, -4.5 0, x -4.5, यहाँ होगा -4 के बाद 5 लाइनें काउंट की, -4.5 हो गया, -4.50, इधर है 1 2 3। सेकेंड पॉइंट -4.5 1, यहां से चले 1 के आगे आके रुक गए, दिस इज -4.51 एंड नेक्स्ट इज -4.5 एंड 2, यहां से चले 2 के आगे रुके -4.52 एंड नेक्स्ट इज -4.53, यहां से चले 3 के आगे जाके रुक गए, दिस बिकम्स -4.53। तो ये हमारे पास लाइन आ गई, आप इसके आगे लिख दोगे x इज इक्वल टू -4.5। तो आप जैसा कि देख रहे हो, हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है ग्राफ से दैट x इज इक्वल टू -4.5, इट रिप्रेजेंट ए लाइन which is parallel to y-axis at a distance of 4.5 units, at a distance of 4.5 units, and because of the negative sign, we have seen that this line, it is on the left side of y-axis rather than on the right side. So ये हमें पहले ही दक्षिता ने बता दिया था कि मैम ये y-axis के पैरेलल आएगी, उससे 4.5 के डिस्टेंस पे होगी एंड रादर उसके लेफ्ट साइड पे होगी बिकॉज ऑफ द नेगेटिव पॉइंट। सो व्हाट यू विल राइट इन टू वेरिएबल्स, x is equal to -4.5
represent a line parallel to y-axis, at a distance of 4.5 units and on the left side lies on the left side. So this is all about exercise 4.4. One example is there that two I want to teach you, because यहाँ पे example में भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर एग्जाम में आ जाता है, तो वो एग्जाम्पल भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ. इसके जैसा ही है, रादर कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे. मैंने एक ही चीज से रिलेटेड 4 क्वेश्चन करवाए हैं, फिर भी अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क. बट अगर जब मैं पूछती हूँ तब आप कहते हो हमें समझ नहीं आया, ये थोड़ा बात होती है. बोलो आप अगर नहीं समझ आ रहा, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारा सिलेबस बिल्कुल ऑन द रन, बिल्कुल ठीक है. चलिए, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की. एग्जाम्पल पे जाने से पहले एक बार फिर पुरानी चीजों को याद कर लें, कहीं भूल ना जाए हमें. कृषान से बात करते हैं. कृषान, Yes, ma'am. Krishan, what is the equation of x-axis? Yes, ma'am. Oh, audible नहीं है voice. What is the equation of x-axis? Krishan. मैम मेरा नेट नहीं आ रहा, वॉइस ऑडिबल नहीं हो रही. मुझे तो आपकी वॉइस बहुत अच्छे से ऑडिबल हो रही है. चलो एनी हाउ, और किसी से पूछ लेते हैं. कार्तिकेय ने तो अपने आगे से माइक का साइन ही रिमूव किया हुआ है कि मैम मेरे से कुछ पूछना पाए. विवान कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे. विवान कुमार. रैना कालरा. हर्षिता 9C. हर्षिता, what is the equation of x-axis? हर्षिता भी शायद नेट की वजह से नहीं कर पा रही अपने आप को. विवान उत्पल नहीं, अपने आप को रिमूव ही कर लेते हैं उसी टाइम पे. ऋषित. Yes, ma'am. Rishit, what is the equation of x-axis? Equation. Ma'am, y is equal to 0. Y is equal to 0. बिल्कुल ठीक, भूलनी नहीं है ये बातें. 1 मार्क्स में, ब्लैंक में, कहीं पे भी पूछी जा सकती हैं, तो बी वेरी केयरफुल. एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y-axis? X is equal to 0. X is equal to 0 is the equation of y-axis, and y is equal to 0 is the equation of x-axis. ठीक है, बिल्कुल ठीक ऋषित, well done. Keep listening to me very carefully so that you be able to give me the answers when I'm asking you. चलिए, let us start with the example. I was saying you that one example of the same sort we are doing. What he says, represent the solution of the equation 2x plus 1 equal to x minus 3. कहता इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करो इन 1 वेरिएबल एज वेल एज इन 2 वेरिएबल. तो सबसे पहले तो वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, हमें इसके सॉल्यूशंस को निकालना पड़ेगा. सो लेट अस सॉल्व एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन. एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो. 2x माइनस एक्स प्लस एक्स उधर गया, माइनस एक्स हो गया, माइनस 3 माइनस 1. सो x इज इक्वल टू -4. ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन. अब हमें इस सॉल्यूशन को 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स दोनों में प्रेजेंट करना है. 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है. राघव शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ. राघव शर्मा, हाँ जी राघव, अनम्यूट योरसेल्फ.
सुहानी, सुहानी, मेहुल, मेहुल, विधि, विधि उपल, विधि, विधि, लक्ष्य कक्कड़, विधि, विधि has unmuted herself. विधि let me know in one variable x is equal to -4 क्या होगा? One variable में Ma'am, क्या होगा? it will represent on the number line. It represent On the number line. क्या नंबर लाइन पे क्या ट्राइंगल, सर्कल, क्या रेक्टेंगल, क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पे? Straight line, ma'am. नंबर लाइन पे स्ट्रेट लाइन वन वेरिएबल में, नंबर लाइन पे स्ट्रेट लाइन वन वेरिएबल में विधि। मैम नंबर लाइन पे नंबर शो होगा ना, नंबर लाइन पे नंबर शो होगा, ठीक है। टू वेरिएबल्स में क्या होगा? मैम इट विल बी शो दैट y is will be parallel to the it will be parallel to y axis. इट विल रिप्रेजेंट क्या? सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल? मैम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल? टू y axis. y एक्सिस कितने डिस्टेंस पे? मैम एट द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स। और y एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन में? मैम लेफ्ट। लेफ्ट साइड